गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है? ये लर्निंग कर्व का मतलब देखिए दो वर्ड से बनकर मिला है। एक तो है लर्निंग, दूसरा है कर्व, है ना। लर्न का मतलब है सीखना। कर्व मतलब कर्व आपने पढ़ा होगा, एक कर्व, डिमांड कर्व, मांग की लॉज, है ना, वो कर्व। तो जो हमारा लर्निंग का कर्व है, सीखने का जो कर्व है, उसको कहते हैं हम लर्निंग कर्व। तो इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द आइडिया बिहाइंड लर्निंग इज दैट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जो आइडिया है, ये जो लर्निंग कर्व है, ये एक प्रैक्टिस जो है वो एक आदमी को परफेक्ट बना देता है। इन द बिगिनिंग द स्पीड ऑफ वर्क इज स्लो बट इट पिक्स अप विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो वर्क का जो स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम वर्क करते चले जाते हैं, आफ्टर ए पॉइंट, एक टाइम के बाद, द स्पीड अगेन स्लो डाउन ड्यू टू फाइड। Therefore, productivity gain are harder with the passage of time. The relationship between experience and productivity is the effect of learning. If this relationship is plotted on a graph, तो जो रिलेशनशिप हमारा होगा प्रोडक्टिविटी और लर्निंग के बीच में या एक्सपीरियंस के बीच में, वो एक ग्राफ के थ्रू हम जब डिस्प्ले करते हैं तो उसे कहते हैं लर्निंग कर्व। द रिजल्टेंट कर्व इज प्रॉपरली नॉन एज द लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस कर्व। इसको हम एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लर्निंग कर्व में बी डिफाइंड एज द कर्व विच शो fall in the average labor cost or rise in the productivity by some percentage with increase in the experience of the operator. It indicates the improvement or progress in performance of a person due to increase in the efficiency, skill. Anyone who repeatedly perform a task knows that in general time required to repeat the task is less than the time required to perform originally. The learning curve phenomenon shown the cumulative effect on cost over time of the length of the production progress function. It is based on the thesis that as a worker learns from experience and as a result of his increased knowledge, labor input per unit of output falls, leading to cost effectiveness. The following factors are responsible for the learning curve. दो फैक्टर हैं जो लर्निंग कर्व को इफेक्ट डालते हैं, जिसमें फर्स्ट है there is an enhanced susceptibility of an operation to improvement, and second है the degree to which the probability or exploited. तो ये हमारी डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कर्व एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस क्या है? इसके हमारे 6-7 पॉइंट हैं। फर्स्ट है लर्निंग कर्व इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विच रिवॉल्व्स द स्टडीली डिक्रीज कॉस्ट फॉर द accomplishment of a given repetitive operation as the identical operation is increasingly repeated. Second is the amount of decrease will be less and become lesser with the production of each successive unit.
द स्लोप ऑफ द लर्निंग कर्व इज expressed as a percentage. Learning curve is also known as experience curve, improvement curve और progress curve. फिफ्थ है learning effect is experience in the production of item which are made largely by labor effort rather than by a highly machinized process. 6 है it applies in production of items which are complex and made in small quantity of special order. In general, higher are the labor contents, more opportunity there will be for learning. आगे हम देखेंगे फेस ऑफ लर्निंग कर्व. द लर्निंग कर्व विल बी पास थ्रू 3 different phases. In the first phase, there will be gradually increase in production rate unit until the maximum expected rate is reached, and this phase is generally step. In second phase, the learning rate will gradually deteriorate because of the limitation of equipment. In the third phase, the production rate begins to decrease due to reduction in customer requirements and increase in cost. तो कम्युलेटिव एवरेज टाइम्स आता है इसमें और कम्युलेटिव आउटपुट आता है, पर यूनिट टाइम होता है. तो अगर हम पर यूनिट टाइम की बात करें कितना और कितने हमारा आउटपुट आया है, उस हिसाब से जो हम निकालते हैं. अगर कम हो रहा है तो वो होता है स्टेडी स्टेट फेस, और जब अगर बढ़ रहा है तो वो कहलाता है लर्निंग फेस. ठीक है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कर्व. Learning curve is a geometrical progression which revolves the steady decreased cost of example given repetitive operation which the identical operation is increasingly repeated. Amount of decrease will be less and become lesser with the production of each successive unit. The slope of the learning curve is expressed on the percentage learning effect or experience in the production of items which are largely by labor effort. It mainly applied in production of such items which are complex and made in small quantity for special order. लास्ट हमारा इसमें जो आज है स्लाइड वो है इफेक्ट ऑन लर्निंग कर्व ऑन कोस्ट. कोस्ट पर क्या इफेक्ट डालता है लर्निंग कर्व. देखिए हमारे पास जो है 4 तरह की कोस्ट हैं. सबसे पहले है लेबर कोस्ट, फिर है वेरिएबल ओवरहेड कोस्ट, फिर है मटेरियल कोस्ट, और फोर्थ है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट. लेबर कोस्ट क्या होती है? एज आउटपुट कैपेसिटी इंक्रीज द वर्कमैन गेन एक्सपीरियंस द लेबर कोस्ट इज पॉजिटिवली डिक्रीज्ड. अगर हमारे पास एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो हमारी लेबर कोस्ट कम होती चली जाएगी. सेकेंड है वेरिएबल ओवरहेड कोस्ट. इट इज affected only to the extent that variable overhead vary with direct labor hours. direct labor hours से इफेक्ट पड़ता है इस पर. मटेरियल कोस्ट इट इज unaffected by learning curve but material handling cost and wastage cost may be show reduction. देखिए मटेरियल वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतना मटेरियल लगेगा, लेकिन फिर भी अगर हम लर्निंग कर्व के थ्रू देखें तो हमारा उसको रखने की कॉस्ट और उसके वेस्टेज की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं. और लास्ट में इसमें फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट. इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय लर्निंग कर्व बट एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड विल बी डिक्लाइन एज मोर यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम. फिर भी हम उसको लेसर टाइम में ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं.
फिक्स कॉस्ट हो, अगर हमें मशीन लगानी है तो लगानी ही है, उसका इफेक्ट लर्निंग कॉस्ट पर नहीं पड़ता, लेकिन उसको हम कब तक यूज़ कर रहे हैं, उसका कैसे मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, इसका इफेक्ट हमारा लर्निंग कर्व से पड़ जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो आज इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे।